سر میرے خیال میں لیب کی ازور کی سبسکرپشن فری ہے جو پریکٹس کے لیے غالباً کچھ تو طریقہ کار انہوں نے بتا دیا ہوگا، اس کا تو کوئی ایسا ایشو ہی کوئی نہیں ہے. باقی یہ جو 1500 روپے کی بات کر رہی ہے، یہ بھائی پیپر کی ہے، دینا تو ٹھیک ہے، نہیں دینا تو چپ کر کے بیٹھے ہیں. پتا ہمیں تو کوئی کسی کو زبردستی نہیں کر رہے، سمپل سا لاجک ہے. آپ کو ایک آفر تھی وہ بتا دی، جو اویل کرنا چاہتے ہیں فبے ہے، جو نہیں کرنا چاہتے کوئی زور زبردستی نہیں. ٹھیک ہے سر جی، اگر لات لگ کے سیٹ اپ ہے نا تو سر جی چھوڑنا نہیں ہے اس بات پہ. جتنی آپ ڈٹائی سے پہلی لائن میں سارے بیٹھ گئے نا، پیچھے پورا سینما خالی ہے. سر کائنڈلی آصف بھائی کو بولا کائنڈلی آن لائن والوں کو میسج لیا کریں. اچھا جی دیکھ لیا سر جی. ایک بڑا پرابلم ہے، میں آن لائن والے سے بڑا بات کر رہا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اسکرین کھولتے ہیں بڑی تو جو میسیجز ہوتے ہیں میرے محترم وہ پیچھے چھپ جاتے ہیں، تو وہ فرنٹ پہ نظر نہیں آتے. میں بھی بڑی مشکلوں، اگر آپ نے دیکھا ہو تو اسکرین کو بار بار سوئچ کرتا ہوں اور پھر سوئچ کرنے کے بعد بڑی تیزی سے مجھے ریڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے. کچھ رومن انگریزی ہوتی ہے، کچھ ویسے انگریزی، اور اس کو سمجھنا پڑھاتے میں ایک بڑا مشکل کام ہے. سی ایل آئی میں جب آپ کام کر رہے ہیں یا کچھ میں لکھ رہا ہوں پھر تو آپ اس انگریزی کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب آپ گرافیکل میں ہوتے ہیں نا تو وہ پورا ایک وجد کا عالم ہوتا ہے جو آپ آگے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا مشکل سا کام ہو جاتا ہے ان سوالوں کو پورے ریڈ کرنا یا پھر ان چیزوں کو. مطلب آئی کانٹ اٹیمپٹ سر سے ریکویسٹ کیے سر نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے کون سا کوئی مطلب آپ سے آپ لوگوں سے اللہ معاف کرے رشتہ مانگا یار کہ ہم ناراض ہو کے بیٹھ دیں گے. وہ ہم نے تو آپ کو ایک آفر کی ہے یار، مطلب پیپر کے رشتے کی آفر کی ہے، آپ نے ایکسپٹ کرنا تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں. آپ بات سمجھ آئیے، آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آئی نیڈ اے سرٹیفکیٹ. سرکار کس چیز کا سرٹیفکیٹ چاہیے مجھے بتا دیں، میں آپ کو آج ہی پانی والے تالاب سے سرٹیفکیٹ بنتا ہے لاہور میں وہاں سے پرنٹ کرا کے اپنے بھائی کو بھجوا دیتا ہوں. سر میری اس کا بارے میں سر کوئی سر جی گروپ کے اندر ہی آپ نے ساری گفتگو کرنی تھی، اور میرے خیال میں حامد بھائی سب کو جس حد تک اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، جتنی ایک انسان کی اوقات ہو سکتی ہے، مطلب اس سے زیادہ کام کر رہے ہیں حامد بھائی. اور اب آپ آگے سے جواب نہ دیں، آپ وقت مقررہ کے اوپر ماڈیول کو اوپن نہ کریں، ماڈیول نہ کریں، فیڈ بیک نہ دیں. حامد بھائی یاد رکھیں پوری کلاس کا کو رسک پہ نہیں لگا سکیں گے، کیونکہ اگر ایک بھی بندہ مس ہو گیا اور وہ کہے دوبارہ فیڈ بیک کے لیے اوپن کریں تو 170 بندہ جو اس کلاس میں انرولڈ ہے سارے کا سارا بیچ کھڈے لائن لگ جائے گا. ہم کسی ایک بندے کو کوئی اسپیشل فیور نہیں. حامد بھائی سسکو نہیں ہے، یاد رکھیں. حامد بھائی تو ایک فیسیلیٹیٹر ہیں جنہوں نے آپ اوپن کیا دیٹس اٹ. اب سسکو کے ہاتھ میں ہے، آپ اگر ڈیلے کریں آپ تو اس لیے جو حامد بھائی گروپ میں بولا کریں، میسج کیا کریں، غور سے سنا کریں، اس کو ایگزیکیوٹ کریں. بعد میں آپ کا کوئی بھی ایشو ہوا تو آپ نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد ایک ہی طریقہ ہے کہ نیا بیچ سٹارٹ ہو، جب ان کو یہ آفر کی جائے تو تب اس بیچ کے ساتھ آپ کو جوائن کروایا جائے. کیونکہ اگر کسی کو بھی حامد بھائی نے کوشش کی ماڈیول کے اندر کوئی ہینکی پینکی 175 بندہ بد دعائیں دے گا باقی کلاس والے اس ایک بندے کو. تو ہم ایسا بالکل کوئی ریسک نہیں لیں گے. سر جی ہواوے میں ماڈیول کر لی، ہواوے کے کہہ رہے ماڈیول سر ایکٹیویٹی کے ماڈیول کری جاؤ سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ اٹیمپٹ نہیں کرنا. بس اگر کر لیا ہواوے کے تو زبردست ہے. ہمیں تو غصے میں تو یار دیکھو انسان ہے، مطلب میں تم سے ایک سوال 170 دفعہ پوچھوں تو تم یا تو مجھے پاگل قرار دو گے تو یا پھر تم مطلب نظر آئیں گے رستہ بدلو گے. بیچارے حامد بھائی کم از کم یار 1800 بچہ اس وقت آپ کے علاوہ ہے. 100 ایگزیکٹ اس کلاس کی رجسٹریشن بتاؤں دیٹ از 179 اسٹوڈنٹس. جو اپوزٹ ڈیز میں کل سٹارٹ ہوا 30 اسٹوڈنٹس ہیں. کل ملا کر 2100-2200 اسٹوڈنٹ ہے جس کو حامد بھائی ٹیک کیئر کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھو ملٹی وینڈرز کے کر رہے ہیں.
उधर से हवावे में इनरोल कर रहे हैं, उधर से सिस्को में कर रहे हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट की अलग एक बताई एक्टिविटी। तो आपने ये देखना है कि यार हम भी थोड़ा सा अच्छा बर्ताव करें और समझें कि यार एक चीज जब बता दी गई तो इंडिविजुअल अटेंशन लेने की कोशिश ना करें। ये इज्तिमाई काम है, इसे इज्तिमाई होने दें। इसे जैसे नमाज जनाजा नहीं होता, समझते हैं नमाज जनाजा, वो उसका क्या मतलब होता है? नहीं, एक भी नमाज पढ़ ले तो सारे दी तरफ हो जाती है, पूरे महल्ले की तरफ। तो क्लास में एक दफा सवाल पूछ लिया, वो सवाल सबके लिए है, बार 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 वही सवाल मुनासिब नहीं है, और किसी ने करानी से। जी हामिद भाई ने जो बोला जबरदस्त बोला सर। एक बात पे मैं हामिद भाई के बड़ा आज मुखालिफ हूँ, वो ये है कि जो फिजिकल क्लास वाले बंदों को जो है ना, वो तो जो टेक्नोलॉजी दी है इन्होंने पूरी टीम ने को 21-22 बंदे इंटर्नी, और इन्होंने किसी को हाथ नहीं पकड़ाया लैब के लिए। ये असद भाई ये, और फिर ये बैठे जगह ढूंढ रहे होते हैं, मैंने देखा कैमरे से, कि जहां पर काम झूठ हो जाए। सर जी आपने जो फिजिकल क्लास वाले हैं वो अगर आए और आकर इनमें से कोई आपको ड्राई या लैब ना दे, मां से भाई मंडे के हमें दे दीजिएगा, इंटरव्यूज है उससे अखुवत के। अगर ये आपको इस तरह का अमल करें, ये मेरा नंबर है, सिर्फ आपने मुझे एक मैसेज कर देना है कि सर पिछले आधे घंटे से बैठा हूं, ना असद साहब राब्ता कर रहे हैं, ना हामिद साहब का राब्ता कर रहे हैं, बल्कि उल्टा बदतमीजी कर रहे हैं, मींस गुस्सा कर रहे हैं, उसे को हम बदतमीजी कहते हैं सर। वो फिर मेरी हामिद भाई से नाराजगी होगी, क्योंकि यार ये नहीं हो सकता। देखो इन हालात में बंदा पेट्रोल लगा कर आए, सर ये बड़ा मुश्किल काम है हामिद भाई, बड़ी दूर से ये बच्चे आते हैं। अगर हमारा भी रवैया सरकारी मुलाजमों वाला हो जाएगा तो फिर सिस्टम का कोई फायदा नहीं। सर मैं कल 2 घंटे आया था लेकिन नहीं आया। सर कल की वजह मैंने आपसे माजरत चाहिए। कल अखुवत के आपने देखा था कि किस लेवल के इंटरव्यूज थे, और मंडे को भी ऐसा अमल है। सिर्फ ये 2 दिन का अमल है, एक दिन गुजर गया और एक दिन मंडे है। मैं सर जी उसके बाद बिल्कुल जिम्मेदार, और ये मैंने नंबर दे दिया जी, अगर मैंने कुछ छुपना होता किसी चीज के पीछे जी आ जाए, बिल्कुल आ जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है। हामिद भाई हैं, असद भाई हैं। असद भाई अगर अपना नंबर बताएं। 0321 9486 412। देखिए बड़ा सादा सा काम है। मैं बाल कटाने जाता हूँ तो नाई को पहले कॉल कर लेता हूँ कि यार आप फारिग हो, ताकि इंतजार ना करना पड़े। वो कहता है सर आधे घंटे बाद आ जाए। तो इधर आप आने से पहले कॉल कर सकते हैं, और अगर ये कॉल का जवाब ही ना दे फिर आप आ जाएंगे, और यहां आपको कोई ना मिले तो फिर भाई ये नंबर है, और आप मुझे बता दें सर ये दोनों हजरात जो इनके अंडर 20 कॉम्पिटेंट बंदे हैं, लेकिन मैं अल्लाह कह रहा हूं कि वो आधे आधे लाख से ऊपर तनख्वाहें ले रहे हैं, पौने पौने लाख से ऊपर इंटर्नी तनख्वाहें ले रहे हैं, और वो अपना रिस्क हराम कर रहे हैं। हामिद भाई की बात नहीं कर रहा, हामिद भाई हमारे उन बंदों में से जो मेरा मतलब राइट आर्म है, असद भाई राइट आर्म है, लेकिन 20 बंदे हैं आप जाकर अगर पूछेंगे। और ये एक बात बता दूं कि वो एक दफा नजर होती है सीनियर की, उसके बाद जब कांटा लगता है ना तो फिर सर वो मार्केट में किसी जोगे नहीं रहते। तो आपको जिंदगी में एक दफा मौका मिलता है कि आप अपना आप प्रूफ करें, और उस टाइम पर अगर आप छुपते फिरते हैं कि काम ना हो, बच्चों के हाथ ना पकड़े जाए, सर फिर अल्लाह भी आपका हाथ नहीं पकड़ता। तो मैंने ये बात अपने दोनों भाइयों को बता दी। अपनी टीम में से सब तमाम निकम्मे और हड हराम लोगों को निकाल कर सही बंदे रखें, और उसके बाद जब आप NA कर लें ईमानदारी से तो हमारे पास आ जाएं पेड इंटर्नशिप पर, लेकिन काम करना हो तो आए। जो मुश्किलातें आपने देखी हैं, आपको पता हो कि ऐसी मुश्किलात अगर आपके दोस्तों को आए तो आपने कैसे उनको पकड़कर हाथ बाहर निकालना। ठीक है जी, तो हम बाकी जितने ऐसे हड हराम होंगे उनको फारिग करेंगे, और आप बिल्कुल हाजिर हो सकते हैं। चलें जी सर, हमारा अखुवत का भी अप्लाई करने का लिए अब तक पता नहीं सर क्या आपने कहा क्या। जी सर अखुवत का लिंक, सर जी मैंने अभी अखुवत का लिंक क्या सेंड करना है बेटा? आप फेसबुक पे जाओगे कॉर्बेट ट्रेनिंग पे, वहां पे
AI साइबर सिक्योरिटी की पोस्ट लगी हुई है, उसके अंदर क्लिक करोगे, लिंक पे फॉर्म है, बच्चे आपको कॉल करते हैं, आपने वो फॉर्म फिल कर भेजना है, इंटरव्यू आपने देना है। लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू इज मंडे को जो हजरात आना चाहते हैं, जिस कैटेगरी के अंदर आके सीधा आके इंटरव्यू दे दें यार, नहीं तो कल सुबह आ जाए यार, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जो आए इंटरव्यू करते जाए, उनके हो जाएगा काम। सर आप कहते हैं एआई का ऑनलाइन भी होगा, लेकिन ये बोल रहे नहीं होगा। किसने कहा? ऑफिस को कॉल की उन्होंने उस वक्त नींद ख्वाबीदा होंगे, ये भी कल की बात उनके उनकी उनकी जहनी कैफियत ठीक नहीं होगी। असद भाई AI ऑनलाइन है? जी सर ऑनलाइन। असद भाई की वॉइस सुना लो अब आप। किसी असद भाई की? जी सुनाए। असद भाई ऑन लगी जे। सर 2 कोर्स ऑनलाइन हैं, एक डेवऑप्स और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक हो गया जी? जी डेवऑप्स जो है वीकेंड पे है, सैटरडे संडे 3 बजे से 9 बजे, और AI वीकडेज में है 7 से 10 जी। मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 दिन है। हमारी दोनों बातें गलत है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आसिफ जी डोंट कंसिडर ऑनलाइन स्टूडेंट, तो वो ठीक करते हैं। शादी के बाद जो मियाँ हजरात हैं वो बेगमों को इग्नोर ही करते हैं, तो लिहाजा अब क्योंकि वो आपके साथ एक तरह के रिश्ते में जुड़ गए, तो आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं यार, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप मत इस चीज की टेंशन लें। बराए मेहरबानी आप अपना ना जो वो करवा रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग, उसको कोशिश करें समझने की। 10% समझ आएगी आपको, सिर्फ 10%, और ये समझ आ जाए बहुत जबरदस्त बात है। फिर आप रिकॉर्डिंग देखें और उसको देखने के बाद आपको 30% तक पर पहुंच जाएंगे। उनका अगला बैच ठीक 15-20 दिन बाद होगा, रीटेक फ्री है। दोबारा करें जब आप 30-40% से स्टार्ट करेंगे, तो आप वो 70-75% पे ले जाएंगे। ये बड़ा आसान सा तरीका है यार, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखें बिग पेन उस लेंगे ये वाली, तो ही उसका बिग रिवार्ड होगा। अगर आप पेन ही कोई नहीं ले रहे, कोई सब्जेक्ट में पेन ही कोई नहीं है, तो कोई रिवार्ड नहीं होने लगा उसको। अब मुझे ना कहिएगा सर तुम्हारी तरफों कोई पेन नहीं आती, मतलब वो छोड़ दें इस बात को। लेकिन वो कोर्स के अंदर वाकई मैं अभी भी बार बार आपको कह रहा हूं, दमखम है, पकड़ के रखिएगा। सर असद भाई ग्रुप में रिकॉर्डिंग जोर की बना ली है जी, असद भाई फेंक देंगे जी। एज लिमिट कोई नहीं है जी, इंटर इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। तलहा मेरे ख्याल में आप शुरू करें जी। देखिए मैंने बड़ी तसल्ली से आपके 10 मिनट में तमाम बस मुझे इस सारे में एक दुख, फिजिकल वाले अगर लैब के लिए आए हैं और उनके साथ है, वो नहीं होना चाहिए। और मैं इंशाल्लाह भाई ऑनलाइन वालों के लिए भी कोशिश करूंगा वीकेंड के ऊपर कोई घंटे डेढ़ का सेशन खास तौर पे ऑनलाइन वालों के लिए अलग रखें कि कैसे आपने लैब करनी है, कैसे हैंडलिंग करनी है। इस सैटरडे को नहीं, मेरी ख्वाहिश होगी कि इससे अगली सैटरडे को एक सेशन घंटे डेढ़ का एक रखा जाए, जिसमें ऑनलाइन वालों को आप लोग भी घर से बैठ फिजिकल हम क्लास नहीं रखेंगे, आपके टाइम से हटकर काम करेंगे, ताकि घंटे में वो ऑनलाइन वाले लोग जो हैं उनके इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। उन तमाम के सवाल लिए जाए कि भाई अब तक तुम्हें लैब में क्या मसला है, उन मसलों को एड्रेस किया जाए। अगर उनकी कोई लैब में इशू है, हम यहीं पे मौके पे वो सेटअप करेंगे, उससे पूछते जाएंगे तुमसे क्या चीज नहीं हुई, तो उसमें सारे लोगों के सवाल जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये सेशन इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर लाजमी रखेंगे। सर क्लास में जो इम्पोर्टेंट होती है सर, हामिद साहब को कहते हैं कि ग्रुप में वॉइस कर दिया करें प्लीज, ऑनलाइन लोगों में इंफॉर्मेशन। ठीक होगा जी, कर देंगे जी। जिशन भाई किस बात, ये किसी लैब की बात नहीं है, ये सारी लैब की बात है। मैं घंटे डेढ़ में जो CCNA का जो कुछ हमने किया होगा, हम उसका रीकैप का और क्वेश्चन आंसर्स का सेशन लैब रेलेवेंट, वो वीकेंड के ऊपर इस तरह से सेशन करके घंटे का, वो ऑनलाइन वालों का भी, और अगर कोई फिजिकल वाला भी करना चाहेगा तो लेंगे। अब और कोई सवाल नहीं पूछना, शुरू कर रहे हैं। जल्दी से जरा आंसर करना है, बड़ी सख्तियां हो गई सर। अब मैंने इस पे लिहाज नहीं असद भाई। सर बाकी कोई काम आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आप यहाँ लैबों के लिए हैं।
جلدی سے بتائیے گا اگر ایک سائڈ پہ اپ اینڈ اپ ہے تو دوسری سائڈ پر کیا ہوگا؟ یار آپ کتنے لائک ہیں. اگر یہاں میں کہہ دوں اگر میں حامد بھائی نے کہا سر ہوسٹ نیم بدل دے لوگوں نے مائنڈ کر جانا موبل لنک اور پی ٹی سی ایل آپ نے اگر لکھ لی ہے لاہور کراچی کوئی مسئلہ نہیں. اگر میں یہاں شٹ کر دوں تو بتاؤ یہاں کیا ہوگا؟ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن ہوگا بھائی. دوسری سائڈ پہ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن ہوگا. یہاں میں نے نہیں پوچھا تھا, میں نے یہاں پوچھا تھا. یہاں کیا ہوگا جہاں شٹ ڈاؤن کیا ہے؟ ایڈمنسٹریٹولی ڈاؤن اینڈ ڈاؤن. ایسے ہی. اچھا یہاں پر بائی ڈیفالٹ اگر سسکو ہے تو انکیپسولیشن کیا ہوگی؟ اور یہاں پر اگر ہواوے ہے تو انکیپسولیشن پی پی پوائنٹ پوائنٹ پڑھو سر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. یہ سسکو ہے, یہ ہواوے ہے. علاقہ کون سا ہے تمہارا پہلے یہ بتاؤ, علاقہ کون سا ہے؟ چھوڑ دو, تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ تم رہتے کہاں پہ ہو؟ تم لاہور ہی لاہور کے, تمہارا ایکسنٹ پختون لگتا ہے. تم لاہور کے ہو؟ نہیں نہیں یار. اچھا ہم تمہارا وہی پوچھ رہے تھے لاہور سے ہو یا آؤٹ سائڈر. اچھا اگر یہاں پر ایچ ڈی ایل سی اور دوسری سائڈ پر پی 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 ہے تو بتاؤ سٹیٹس کیا نظر آئے گا؟ اپ اینڈ. تو پھر دوسری سائڈ پہ کیا ہوگا؟ اپ اینڈ ڈاؤن. ہو مانتے ہو؟ اور اب تم نے اگر یہ اس کو آپ کرنا ہے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایکسلنٹ. یا یہاں پی 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 کر دو یا یہاں ایچ ڈی ایل سی کر دو. یہ تو سمجھتے ہو نا. اچھا بات یہ ہو رہی تھی تو سمجھ آ رہا ہے کسی کو سمجھ آئی کیا رومن لکھی؟ اچھا مائی دی چکی سے. اچھا ذیشان میں قسم تیرے کو سوال نہیں پوچھا یار. میں تو فزیکل کلاس میں ہمارا ایک بھائی تھا, میں اس سے سوال پوچھ رہا تھا یار. یہ تو ہاتھ ہی نکال دیا پوری فزیکل کلاس کا تم نے یار. ہے چلو یار واپس آ جاتے ہیں. سر ہے بڑا بڑا سر جی لطیفہ ہی ہو گیا سر. اچھا یار ہمارا لاسٹ لیکچر والا سمجھ آ گیا تھا نا کیا؟ آگے چلیں نا, مطلب اسی کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر موبل لنک ہے, یہاں پر پی ٹی سی ایل ہے. میں اب آنے لگا ہوں دوسرے ایشو پر which is a clock rate. ہائے میں اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یار چل ٹائم بچ جائے, تم نے مجھے نکلنے نہیں دیا. میں نے اسی لیے نا تم لوگوں سے کلوایا. تم نے کہا ہاں آگے چلو, میں آگے نکل گیا, لیکن تم نے مجھے آگے جانے نہیں دیا. بھائی کہہ رہا تھا سر آپ نے کہا تھا کوئی پورا ایک قصہ سنائیں گے کہ جس میں آپ کو زندگی میں پہلی دفعہ کسی جگہ پر گئے اور انکیپسولیشن کا مسئلہ کیسے درپیش آیا. ایسے ہی سلسلہ 1996 دسمبر, ٹھنڈی راتیں, اور بینک کا نیٹ ورک اے بی نامرو کا, اور چلر لگے ہوئے یعنی فریزنگ ٹیمپریچر. تو آپ کو پتا ہوگا جو نیٹ ورک ہوتے ہیں اس کی یہ میں نے آپ کو ایک کیفیت بیان کی ہے. اچھا یہ داستانیں وہ لوگ سنا سکتے ہیں آپ, اور باتیں وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ماضی میں نا رسالے پڑھے ہوئے ہیں. وہ آدم خور شعر نہیں, گرمیوں کے دن مئی کا مہینہ سرکنڈے اور نہر کا کنارہ, اور اچانک کو آدم خور شعر آ گیا. تو یہ آج کی قوم یہ باتیں کر بھی نہیں سکتی. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں, یہ ماضی کے جن لوگوں نے کتابیں پڑھی ہوں وہی یہ جملے بازی بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ مطلب میں پہلی دفعہ 96 میں نیٹ ورک کے لیے میں پہلی دفعہ گیا کسی جگہ پر, اور مجھے کوئی کمانڈ نہیں آتی تھی کیونکہ میں الیکٹریکل انجینئر تھا. میرا کام جو تھا مدر بورڈ ڈیزائننگ کا تھا. تو وہاں پر کراچی سے ان کے آئی ٹی مینیجر آئے ہوئے تھے. میں ان کا نام نہیں لے رہا بیکاز آج بھی وہ اب اس وقت اس بینک کے آئی ٹی ہیڈ ہیں, اور فیصل بینک ہو گیا وہ, لیکن اب ان کے آئی ٹی ہیڈ ہے. میری کمپنی جو تھی دیٹ واز سسنیٹ,
اور انہوں نے مجھے بھیجا کہ یار وہاں پر جانا ہے، جیسے جیسے تمہیں بتایا جائے گا تم نے وہ چینج کرنی ہے رات 11 بجے. خیر میں وہاں پر بیٹھا ہوا، میرے ساتھ لوکل ہمارے آئی ٹی مینیجر تھے پاکستان کے اندر لاہور میں، فیصل بینک کے یوسف بشیر طور، جو کہ ابھی آسٹریلیا میں بڑی اچھی پوزیشن کے اوپر ہے اور انتہائی جینٹل مین بندے. تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو کراچی سے آئے تھے، اور وہ ٹک 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 کر کے کمانڈیں دے جائیں، اور میں انہیں سوال کیا کہ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ ہمیں بھی سکھائیں. اور اس بندے کا جملہ تھا یار تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، ہائی اینڈ چیزیں. ہم نے کہا ہائی اینڈ چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے رہنے تو. ویسے بھی انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے پتا ہے آن لائن میں کراچی سے 5-7 بندے ہیں. کراچی والے لوگوں کو ایک مسئلہ ہے، سکھانے کی عادت نہیں ہے، چھپاتے ہیں. 97-98 ٹیکنالوجی میں کراچی پاکستان کا ہب تھا، لوگ سیکھنے وہاں پہ جایا کرتے تھے. سجی یہ لوگوں کی آوازیں اس میں سے آ وہاں سے ہی جی. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا، اس کو ذرا آواز کو، تو لہٰذا میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہاں پر انہوں نے بالکل سکھانے کی کوشش نہیں کی. اور آپ یقین جانیں ان حرکتوں کی وجہ سے کراچی ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گیا. ہمارے یہاں پہ نا لاہور میں ایک اچھی صفت ہے، کچھ وہاں کی ہیں، کچھ ہر علاقے کی اپنی ہے. لاہور میں نا سکھانے کا بے دریغ عمل ہے. ہم ایک دوسرے کو سکھانا اپنا شوق سمجھتے ہیں. جیسے آپ پشاور کے لوگوں کی کے پی کی بات کرتا ہوں، وہاں پر لوگوں میں ایک کمال عمل ہے کہ وہ کوئی بھی بندہ ان کے علاقے کا آتا ہے باہر کے ملک میں، وہ اپنے پاس ٹھہرا لیں گے 15-20 دن، مہینہ. یہ پنجابی نہیں کر سکتا، لیکن وہ لوگ کرتے ہیں اس چیز کے. تو ہر علاقے کی میں نے کہا کہ اپنی صفت ہے، اور ہماری جو صفت ہے وہ جینوئنلی لاہور کی صفت ہے کہ اگر جو استاد ہیں اچھے، وہ بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. خیر انہوں نے کوئی بات نہیں سکھائی. میں بیٹھا ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہا، جو لوکل آئی ٹی مینیجر تھے، اور اتنے میں مجھے یاد ہے پیزا ہٹ سے پیزے آئے. یہ بتانا بڑا ضروری ہے، 2 پیزے آئے، اور ہم نے انہیں کہا کہ سر یہ آپ کھائیں گے؟ انہوں نے کہا یار میں کام کر رہا ہوں، آپ شروع کرو. ہم نے ایک پیزا کھا لیا اور ایک ان کے لیے رکھا. یہ سارے گفتگو کو کوئی 9-9:30 کا ٹائم تھا. 11-11:30 شدید ٹھنڈ، اور ان کے پسینے کے قطرے نکل رہے تھے. اور ہم نے ان سے کہا سر یہ آپ کا پیزا ہے، آپ کھائیں گے نہیں؟ انہوں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، نیٹ ورک ڈاؤن ہوا اس وقت، اور تم پیزے کی پڑی ہے، کھا لو تم لوگ. اور آپ یقین جانے ہم نے وہ دوسرا پیزا بھی کھا لیا اور بڑا مزہ آیا. اور ایسا پیزا ہٹ کا پیزا کبھی دوبارہ، ظاہر بات ہے ان کی جیب سے تھا، لہٰذا کبھی دوبارہ نہیں ملا. اور اس کے بعد جو ہے رات 1 بجے تک وہ کبھی کہیں کال کر رہے ہیں، کبھی کہیں کال کر رہے ہیں. اس عمل میں غور سے سنیے گا، یہ ٹربل شوٹنگ کا بتا رہا ہوں. 1 بجے انہوں نے کراچی کے بندے کو کال کی اور اس نے کہا تمہاری سائٹ پہ کیا سٹیٹس ہے؟ اس نے کہا انٹرفیس آپ لائن پروٹوکولز ڈاؤن. یہ وہ پہلا جملہ تھا جو میں نے اپنی زندگی میں سنا، انٹرفیس آپ لائن پروٹوکولز ڈاؤن. اور اس کے بعد ان صاحب نے کہا کراچی کا راؤٹر ری سٹارٹ کر. کراچی کا راؤٹر ری سٹارٹ ہوا، اور جب سٹارٹ ہوا تو انہوں نے پوچھا اب کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا سر سارے کا سارا نیٹ ورک ہی بیٹھ گیا. ہماری کو تقریباً یہاں پر اس وقت اس کے ساتھ مور دین 62 برانچز ہیں، سب بیٹھ گئی. یہاں تک کہ ہمارا جو باہر کا لنک ہے وہ بھی ڈاؤن ہو گیا. جب یہ سلسلہ ہوا تو انہوں نے مجھے فوری طور پہ کہا کہ یار تم، میں سسٹنٹ میں تھا، تم اپنے سینئر مینیجر کو کال کرو جو ٹیکنیکل سائٹ کا، اور ان کا نام تھا ماجد صاحب. یہ بھی کراچی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بڑا زمین آسمان کا فرق، بڑا سکھانے والے بندے، اور پاکستان کے پہلے CCI تھے. مطلب مجھے نیٹ ورک کے اندر یہ سننے والی بات ہے، اور آپ کو لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے. CCIE کا نام میں نے پہلی دفعہ ان کی نسبت سے سنا تھا، اور انتہائی ٹیلنٹڈ بندے، کمپٹنٹ بندے. آج وہ پاکستان میں سسکو کے ہیڈ بھی ہیں. انفیکٹ ان کی جو بیٹی ہے وہ اب ماشاءاللہ اتنی بڑی ہوگی کہ وہ بھی اس لائن کے اندر ہے. تو میں نے ان کو کال کی اور انہوں نے کہا کہ سر وہ ان کا نیٹ ورک ڈاؤن ہے. میں نے کہا یار تم نے تو کچھ نہیں کیا. میں نے کہا سر میں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے کنیکٹ کیا، مجھے یاد ہے یہاں سے سیشن لیا ہوا تھا انہوں نے اس مشین کا، اور انہوں نے کنیکٹ کیا، سب کچھ زیرو تھا. بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کوئی کمانڈ سیو ہی نہیں کی گئی تھی.
جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ اگر ڈبہ ریلوڈ ہو تو سب کچھ کیا. خیر انہوں نے چپ کر کے, کیونکہ انہیں پتا تھا کیا ہوا ہے, نوٹ پیڈ میں سے کانفیگریشنز کاپی کی, کاپی کرنے کے پاس پیسٹ کی, اور اس بندے کی تقریباً چیختے ہوئے آواز آئی, سر نیٹ ورک آپ ہونے شروع ہو گئے. کیونکہ اگر 62 لنک ہے, 62 لنکس ہیں, تو وہ اسٹیٹس دکھا رہے ہوتے ہیں آپ. لیکن انہوں نے, ماجد صاحب نے بڑے پیار سے پوچھا کہ یہ مسئلہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا. تو انہوں نے جواب دیا, جو ادھر مینیجر تھے, کہ سر لاہور اور کراچی کا لنک ڈاؤن ہوا تھا. لہذا انہوں نے اور کوئی سوال نہیں پوچھا, انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ہارون چیک کرو تمہاری سائٹ پر لاہور اور کراچی, جو کراچی کا لنک ہے, اس پہ کیا سٹیٹس آ رہا ہے. کمانڈ بھی انہوں نے بتائی کہ شو انٹرفیس سیگل یہ کرو. میں نے وہ کمانڈ دی اور سٹیٹس بتایا that interface is up and line protocol is down. اب نہیں ہوا تھا بھی, حالانکہ انہوں نے کنفیگریشن کاپی پیسٹ کر دی. آپ بتائیے گا کہ اب مسئلہ لاہور کی سائٹ پہ تھا یا کراچی کی سائٹ پہ تھا. اتنی لمبی کہانی سنائی ہے, اس میں سے کچھ تو نکالیں. مسئلہ لاہور پہ تھا یا کراچی پہ تھا؟ مسئلہ گارنٹیڈ لاہور پہ تھا رضا بھائی, کیونکہ کراچی پہ تو صحیح کنفیگریشن ہے, کاپی پیسٹ کر دی تھی. اس کا کراچی مسئلہ نہیں ہو سکتا تھا, مسئلہ لاہور تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اگلا سوال پوچھا, تمہاری سائٹ پر انکیپسولیشن کیا ہے. انہوں نے پھر کمانڈ بتائی اور میں نے کہا سر انکیپسولیشن ہے HDLC. انہوں نے کہا یہ کس بیوقوف نے چینج کی ہے. میں نے نام لے کے کہا سر انہوں نے کی. تو میرا ہمیشہ سے ذرا رویہ تھوڑا سا اس طرح سے اسٹریٹ فارورڈ رہا, کیونکہ کبھی بھی آنیسٹلی بتاؤں کہ نوکری کا اس طرح سے مزاج کبھی رہا ہی نہیں. یہی ہوتا تھا کہ آپ سیکھ رہے ہیں تاکہ آگے کی طرف آپ موو کر رہے ہیں. تو میں نے نام لے کر کہا سر جی انہوں نے کی ہے. انہوں نے ایک لفظ بھی ان کے متعلق نہیں کہا, کیونکہ ان کا وہ بہت بڑا کلائنٹ ہے بینک, آج بھی وہ بینک انہی کا کلائنٹ ہے اور ساری کمپنی اس بینک کے اوپر چلتی ہے. خیر انہوں نے مجھے کہا کانفگ موڈ پہ جاؤ, میں گیا. انٹرفیس موڈ پہ جاؤ, میں گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا لکھو انکیپسولیشن اسپیس PPP. دا مومنٹ میں نے انٹر کیا, اسٹیٹس نظر آنا شروع ہو گیا that interface is up and line protocol is up. That's the only thing جو انہوں نے اس رات کی, اور لنک اپ ہو گیا. سوال یہ بنتا ہے کہ وہ جو اتنا بڑا IT مینیجر اور اتنا سینئر بندہ ہو گیا تھا, اس سے اس رات ٹربل شوٹنگ کیوں نہیں ہوئی؟ اتنی چھوٹی چیز اس سے کیوں نہیں پکڑی گئی؟ اور جو دوسرا سوال ہے وہ یہ تھا کہ سر اس نے کیا کیا تھا جس سے انکیپسولیشن بدل گئی. خیر ناصر صاحب یہ کہہ کہ وہ ماجد صاحب چلے گئے, اور ان کے جانے کے بعد وہ بندہ اب مجھے ساتھ بٹھا لیا اور نہ پورا پیچھے سے کمانڈو کی ہسٹری دکھا رہا کہ چیک کرو ارون یار میں نے تو چینج بھی نہیں کی, یہ دیکھو خود ہی ہو گئی. میں نے بڑا سمپل سا جواب دیا, میں نے سر کل صبح, اچھا ایسے جب ڈاؤن ہوتے ہیں نا اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے باقاعدہ, غلطی کس کی ہے, اور باقاعدہ وارننگز ایشو ہوتی ہیں. میں کہا سر مجھے کوئی نہیں پتا, کل یہ لوگ دیکھیں گے, ڈیبگ چیک کریں گے اور بتائیں گے غلطی کس کی. اس نے ساری ہسٹری دے, غلطی پکڑ نہیں سکا. سوال ہے سر ہوا کیا تھا؟ اگلے دن جو رپورٹ آئی وہ بڑی زبردست تھی, اور وہ رپورٹ یہ تھی, یہاں پہ ذرا PDCL پہ ملے, کانفگ موڈ پر آ کے انٹرفیس سیگل 0 پہ, انٹرفیس سیگل 0 پہ تھا, انکیپسولیشن تھی PPP. سوال ہے سر HDLC کیوں نہیں PPP نا ایک سٹینڈرڈ ہے اور اس میں فیچرز بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو دا HDLC. یہاں پر اس وقت آپ کی انکیپسولیشن کیا ہے PPP. ان صاحب نے کیا کیا اس رات, وہ ہمیں امپریس کرنے کے لیے یا میرے جیسے نئے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کبھی کمانڈ دیں شو رن, آپ سمجھ رہے ہیں, وہ جیسے آپ نے نئی نئی کمانڈیں سیکھی ہیں, آپ کے پاس بندہ بیٹھا ہے, رات بیٹھے آپ ایسے کام کرتے ہیں, ایک دم آؤٹ پٹ آتی ہے, آپ ایسے کرتے ہیں, ایسے لگتا ہے پتر ساڈا پتہ نہیں کتنا بڑا کوڈ لکھ رہے ہیں.
फिर आप कभी कर रहे हैं शो इंटरफेस सीरियल जीरो ऐसे कर रहे हैं, आउटपुट आई आप सबको दिखा रहे हैं क्या लिखा है, समझ आपको भी नहीं आ रही, समझ उसको भी नहीं आ रही, लेकिन आपको ये हरकतें करने का पूरा शौक है, तो आप ये काम कर रहे होते हैं। इस रात वो साहब भी कुछ ऐसी ही हरकतें कर रहे थे हमें इम्प्रेस करने के लिए, अल्लाह हम तो पिज़्ज़ा खा रहे थे। अच्छा, उनसे क्या हुआ, वो करते करते कभी जाएं ऐसे मोड में, समझ रहे हैं ना, जब आप जल्दी से अच्छे से टाइप करते हैं तो लगता है पता नहीं कितना आलम है हमारा बच्चा, तो ये कभी ऐसे करें, कभी बाहर जाएं, कभी एग्जिट करें। अब यहां पर ना एक कमांड है एंड, क्या है, जब आप एंड करते हैं तो आप कहां पे आ जाते हैं, नजर आया आपको, एग्जिट करके एक स्टेप पीछे आते हैं, फिर एग्जिट करते हैं एक स्टेप पीछे, ये सीधा आपको बाहर ले आता है। तो वो साहब क्या करें, कभी आपको यहां लेके जाएं, कभी वो ऐसे करें, कभी वो यहां पर एंड लिखकर ऐसे करें, तो लगे पता नहीं क्या यार रिसर्च हो रही है, नए बंदे को समझ ही नहीं आनी। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कहीं, ये आप समझने वाली बात, और से एक चीज देखिएगा, ई करें क्वेश्चन मार्क, ऊपर ले जाए भाई, और हुक्म करो, कुछ और मांग लिया। हाँ कुछ और मांग लिया नहीं, भाई ना एंड पे जाके बैठता है। भाई का आज भी लॉजिक ये है कि जो बैक बेंचर होते हैं बड़े लाइक होते हैं, हालांकि ये जो शॉर्ट कोर्सेज है इसमें इसके बिल्कुल उल्टा है, जो आखिरी लाइनों में बैठते हैं ये इंतहाई निकम्मे होते हैं, और जो पढ़ने वाले होते हैं वो अगले आधे हिस्से में होते हैं, इसलिए हमें याद ही अगले आधे हिस्से वाले रहते हैं, पिछले हम नहीं याद रखते। तो लिहाजा आप सोच को बदलें, और वो जो बैक बेंचर वाली डेफिनेशन है उसको चेंज करके आगे की तरफ तशरीफ लेकर आया करें और आगे बैठा करें, जितना करीब होंगे उतना अच्छा लगेगा। गौर से देखो, मैं अभी क्या लिख रहा था, एंड, याद है क्या, यहां पर जब ई करके क्वेश्चन मार्क करता हूं तो एंड लिखा नजर आ रहा है, नहीं है ना सर, वो उसी वक्त पीछे जब कोई कमांड की हिस्ट्री उठा के कॉपी कर देते हैं मौके पे, ये एक स्टैंडर्ड एसओपी है, एंड नजर नहीं आ रहा ना, तो इसका क्या मतलब है, एंड एक हिडन बट डॉक्यूमेंटेड कमांड है। हिडन कमांड्स की प्रायोरिटी होती है, हिडन कमांड्स की, एंड यहां नजर नहीं आ रहा है, देखो एंड ई से इनकैप्सुलेशन नजर आ रहा है और एग्जिट नजर आ रहा है, लेकिन एंड एक कमांड है जो कि हिडन है, मैंने कहा हिडन कमांड की प्रायोरिटी होती है। वो क्या करे, एंड लिखे और बाहर आ जाए। अब उसने लिखा है ईएन, ईएन का क्या मतलब है, एंड भी ईएन से है, एंड भी और इनकैप्सुलेशन भी। लास्ट लेक्चर अगर तुम्हें याद हो तो हामिद भाई लिखा था, याद करो, क्योंकि अगर वो खाली ये करते तो ये देखें उसने इसको खींच के बाहर निकाल दिया, बात समझ आइए। हालांकि अब हम तो दूर हो चुका था, ओ भाई अब हम तो तुम्हें ये नजर आ रहा है ईएन पे खत्म हो गया, लेकिन असल गेम क्या हुई कि बैकएंड के ऊपर एंड भी थी, वो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, उसने कहा अब हम है। सो ईएन का क्या मतलब है, एंड, क्यों, क्योंकि हिडन कमांड की प्रायोरिटी होती है, ईएन माने एंड। उसने कहीं लिखा ईएन जिसका मतलब था एंड, उसके बाद कहीं उसने डाल दिया नो ईएन, उसके मुताबिक ये क्या था, नो एंड, ईएन माने एंड है, लेकिन नो ईएन माने नो एंड नहीं है, नो ईएन माने नो इनकैप्सुलेशन है, लिहाजा उसने क्या किया, नो ईएन किया, उसने क्या किया, नो ईएन किया, जिसका मतलब नो एंड। अब देखो वो बाहर नहीं निकला, चेक कर लो, लेकिन इनकैप्सुलेशन कहां चली गई, डिफॉल्ट पे। याद करो थोड़ी देर पहले इनकैप्सुलेशन क्या रखी थी, पीबीबी, लेकिन जब उसने नो ईएन किया और तुमने शो इंटरफेस सीरियल जीरो किया, सर खींच के दिखाएं, इनकैप्सुलेशन क्या हो गई होगी, एचडीएलसी। बात समझ आई। अब वो कसमें खा रहा है कि मैंने इनकैप्सुलेशन चेंज करने की कमांड नहीं दी, वो सही कसमें खा रहा है, लेकिन उसको पता भी नहीं लगा, क्योंकि अगर कहीं उसने ये कमांड दी होती तो उसको नजर आ जाता पुरानी हिस्ट्री में। उसने तो लिखा था नो ईएन, और वो यही सोचता रहा ये नो एंड है, लेकिन वो एग्जीक्यूट हो गए नो इनकैप्सुलेशन पे, और उसने कर दिया इनकैप्सुलेशन एचडीएलसी। अब एक साइड पे पीबीपी था, इसकी साइड पे एचडीएलसी था, स्टेटस नजर आ रहा है इंटरफेस पे, लाइन बढ़ो प्लीज डाउन।
अब उसका ध्यान जा ही नहीं सकता इस बात पे। अब यार ये वो ट्रबल शूटिंग है जो इंतहाई डीप नॉलेज मांगती है चीजों। और ये जो मैंने आपसे पूरी कहानी बनाई ना 10 मिनट 15 मिनट की, ये वो उस रात की कुछ 6 घंटे की रियाजत थी जो मैंने आपको 10 मिनट 15 मिनट में बताई कि भाई जब नेटवर्क में बैठते हैं तो ऐसे तजर्बे नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं लगता तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उसके नताइज बड़े बाज दफा डेंजरस होते हैं। ये जितनी प्रैक्टिसें होती हैं, याद रखें इसमें कंपनी के लिए अलग लैब के सेटअप्स होते हैं, या आप अलग से लैब में ये काम करते हैं। प्रोडक्शन में कभी ऐसी हरकत करने की इजाजत नहीं होती कि बैठ के एवं अपनी मर्जी से कमांड दे रहे हो जिनका तुम्हें पता ही कोई। ये उस रात एक इशू हुआ जो अगले दिन तहकीक के बाद साबित हुई कि ये मसला है। आई होप के बात समझ आ गई हो। ये मेरे भाई ने पूछा था कि बदल जाती है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। अदरवाइज यकीन जानो अगर तुमने इनकैप्सुलेशन रखी हुई है तो कोई ऐसा नहीं है तरीका कि तुमने फूंक मारी, कोई ऐसी चीज आई कि अचानक इनकैप्सुलेशन बदल गई। जब तक के ह्यूमन हाथ नहीं लगते, इंसानी हाथ नहीं लगते, ये काम खराब नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, ये बताना जरूरी था जी। अब बात आती है जी क्लॉक रेट पे। याद होगा पहला काम था इनकैप्सुलेशन जुबान, दूसरा क्लॉक रेट। लेकिन क्लॉक रेट पे आने से पहले हम बात करते हैं जी बैंडविड्थ की। बड़ी खतरनाक बात करने लगे। बैंडविड्थ, बच्चा इस टर्म से वाकिफ है। आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और आपने बैंडविड्थ का नाम नहीं सुना या नहीं बोला, मैं मान ही नहीं सकता। आपने इंजीनियरिंग की, सीएस किया, आईटी किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, डिप्लोमा इन आईटी किया, कुछ किया, आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको बैंडविड्थ नहीं आती, हमें डूब मरना चाहिए। जेन्युइन बता रहा हूं, बैंडविड्थ की डेफिनेशन की माफी नहीं है। तो जरा जल्दी से बता दें बैंडविड्थ क्या है भाईजान। भाईजान ऑनलाइन वाले लोग यार, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें की फिर भी कुछ नहीं हुआ था। रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर और जी रेट ऑफ पैकेट ट्रांसफर, एक और आई फ्रीक्वेंसी रेंज, कैपेसिटी ऑफ, कौन है रिटेकर? हाँ, कहां से लेक्चर सुना मेरा, किससे देखा, किसने दिया, हाँ किसने पढ़ाया, कौन? सर तौफीक ने कहां से पढ़ा? लफ्जों से पता लग जाता ना, क्यों सर? जबरदस्ती। ये मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ डेफिनेशन बता रहे हैं, कोई एक अकीदे पे मुत्तफिक है ही नहीं। पुख्ता अकीदा तो वो होता है ना जो एक हो। अगर मुख्तलिफ उलमा की राय डिफरेंट हो जाए तो फिर शक किया जाता कि यार इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सर आप बड़ा मुस्कुराते हैं ऐसी बातों में, मैंने क्या गलत बात की? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये देखें ना एक और डेफिनेशन आई, बिल्कुल सब सही डेफिनेशन बता रहे हैं। असल मसला ये है इलेक्ट्रॉनिक्स में डेफिनेशन डिफरेंट है, इकोनॉमिक्स में डिफरेंट है, और कम्युनिकेशंस में डेफिनेशन फर्क है। इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है जो मेरे भाई लोग बता रहे हैं कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो क्या कहलाती है? वो बैंडविड्थ कहलाती है। लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ नहीं है। एक बड़ी मशहूर किताब है जेबी बुगार्ट की, चैप्टर नंबर 10 फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का चैप्टर है। उसमें अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी डायग्राम बनी, ये फ्रीक्वेंसी का एक्सेस है, ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, और इसके दरमियान में यहां से लेकर यहां तक ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? इट्स अ बैंडविड्थ। और ये अपर कट ऑफ और लोअर कट ऑफ क्या होता है? गौर से देखो, यहां बैंडविड्थ, ये अगर देखो ये गेन का एक्सेस है और ये कांस्टेंट है, फिक्स है, और आसान जुबान में 220 वोल्ट। अब मैंने कहा मैं पढ़ा भी दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। लोअर कट ऑफ होता है 0.707 ऑफ द 220 वोल्ट। वो कहता है यार अगर किसी भी डिवाइस का थ्रेशोल्ड देखते हैं ना तो वो 0.707 तक स्टेबल रहती है। अगर फ्रीक्वेंसी को वोल्टेज को उससे नीचे ले आए, सडन ले आए,
50 वोल्ट पे लें तो तुम्हारे घर की डिवाइसेस उड़नी शुरू हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी. सो द सेफ रेंज टू ऑपरेट योर डिवाइसेस वो यहां से लेकर यहां तक है. 0.70 होता है, दैट्स द सेफ रेंज टू ऑपरेट योर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस. तुम्हारा घर का ये ट्यूब में टीवी 180 वोल्ट पे ले ना, 170 75 चलती रहेगी. लेकिन अगर अचानक 105 80 10 20 वोल्ट पे ले, डैमेज हो जाएगी. तो ये वो हिस्सा है जिसे हम बैंडविड्थ का नाम देते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी का एक्सेस है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. दूसरी डेफिनेशन होती है इकोनॉमिक्स में. अच्छा याद रखिएगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, काट दें इस बात को. दूसरा होता है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के अंदर एक किताब है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के नाम से, और उसका फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन में उसके दूसरे चैप्टर के अंदर ही एक डेफिनेशन है बिजनेस बैंडविड्थ की, और उसकी भी डेफिनेशन है द सेफ रेंज टू ऑपरेट योर बिजनेस. द सेफ रेंज टू ऑपरेट योर बिजनेस वो क्या कहलाता है? बिजनेस बैंडविड्थ. पर वो क्या है? लेट्स से तुमने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपया लगाया और तुम्हें बिजनेस में नुकसान हुआ, तो एक कट ऑफ है 0.707. इसका मतलब है जब तुम्हारा बिजनेस 7 लाख के ऊपर पहुंचा नुकसान होकर, तो कहता है कि तुम्हें अपना बिजनेस असूलन बंद कर देना चाहिए. कई जिद्दी बिजनेसमैन होते हैं, नहीं हम चला के दिखाएंगे, लेकिन वो कहता है कि जब आप ऐसी हरकत करते हैं तो आपको इतना सडन लॉस होता है कि जो आपका बाकी बचा हुआ 7 लाख है वो दिनों में लिक्विडेट हो जाता है. और बिल्कुल इसी तरह यहां से अगर बिजनेस में एक सर्टेन लेवल पर बहुत ज्यादा फायदा होना शुरू हो जाए, तो अक्सर कंपनी के एम्प्लॉय की बड़ी नजर होती है कि यार कंपनी बड़े नफे के अंदर जा रही है, लुट लो इनको. तो दैट्स अ टाइम टू लॉन्च अनदर ऑपरेशन. भले रोटियों का काम लगा, अगर तुम पहले पढ़ाई की साइड पे हो, कारोबार है, वह दूसरा रियल एस्टेट में डाल दे, रोटियों को तंदूर लगा दे, लेकिन बिजनेस आपको ऐड करना चाहिए. तो ये एक बिजनेस बैंडविड्थ है, द सेफ रेंज टू ऑपरेट योर बिजनेस. हमारा ना तो ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमारा ना ही ताल्लुक इकोनॉमिक्स के साथ है. ये मैंने इसलिए बताया कि ऑनलाइन में कुछ लोगों के जवाब ये दोनों आ रहे थे. हमारा ताल्लुक मैंने बताया किसके साथ है? कम्युनिकेशंस के साथ. और कम्युनिकेशंस की बैंडविड्थ के लिए अगर आप कभी, अल्लाह आपको तौफीक दे, एक किताब है विलियम स्टैलिंग्स की, बड़ी मशहूर किताब है, वो खोल लें या टेननबाउम खोल लें. उसके अंदर कम्युनिकेशंस की बैंडविड्थ के लिए ऐसी ही डायग्राम बनाई गई, डिट्टो ये जो बनी डायग्राम मैं जरा आपके सामने दोबारा. ये जो ऑनलाइन में नेट से उतार के दे रहे हैं ना, इनके तो मैं भी ठंडा करता हूं. मुझे एक बात बताओ भाई, इतनी लंबी नेट से इसने डेफिनेशन कॉपी की और आके पेश कर दी. अब ये आसिफ भाई पढ़ेंगे बेचारे, बिट नंबर ऑफ बिट्स इन पर सेकंड एंड फलाना एंड टमकाना, ये भाई ने पूरा लिख कर भेजा. मैं माफी कर देना भाई, इतनी लंबी कहाँ पढ़ी जानी है? मेगा बिट, मिली बिट, फलाना बिट, किलो बिट, ये पूरा इसने पश्तो लिखी है, देख. मैंने तो, क्योंकि हम तो अल्लाह का शुक्र है जरा रीडिंग में तेज हैं, तो हम तो जल्दी से ऐसे आता सामने पढ़ लेते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है, उस्तादों के लिए आजमाइश हो जाती है. अब आते हैं जरा वापस, किधर गया सब लोग? ये वापस इधर आते हैं. जितने लोग डेफिनेशन बता रहे हैं मुझे जरा जल्दी से बताएं, और ये आना चाहिए. आप में से किसी ने शैनन का नाम सुना है? शैनन थ्योरम. सर आपके टीचर ने शैनन का नाम बताया, तो फिर डेफिनेशन कैसे कराई? अब वो मेरा स्टूडेंट नहीं है जी. शैनन थ्योरम किसी ने नाम सुना? हाँ या ना? कोई एक हाथ खड़ा कर. मेरे से सुना है बस. जज़ाक. और ऑनलाइन, हाँ जी, शिनशैन. अब मैं कहना लैका दी कमी कोई नहीं भाईजान. कोई तो ऑनलाइन में 100 में से कह दे शैनन, शिनशैन नहीं, शैनन थ्योरम कार्टून है.
سر مجھے لگ رہا ہے ذیشان نے کچھ پیا ہوا ہے، یقیناً ذیشان ٹھیک موڈ میں نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کوئی کریکٹر ہے کارٹون کا. یار استغفار یار. دیکھیں یار میری بات سنیں، یہ ایسے ہی ہے مذاق جیسے ایک بندہ کہے میں پاکستان میں رہتا ہوں اور میں نے قائد اعظم کا نام نہیں سنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ میں نے وائس کا نام تو سنا ہے، گرام بیل کا نام نہیں سنا. بلب کا نام سنا ہے لیکن ایڈیسن کا نہیں پتا. ویسے ایک بندہ کہتا ہے میں نے بینڈوڈ کا نام تو سنا ہے، شینن کا نام نہیں سنا. یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے. تو اب آپ کو اپنے جرم کا احساس ہوا ہوگا کہ واقعی زیادتی کی کہ ہم نے وہ بندہ جو بینڈوڈ کا ایک معنوں میں خالق مانا جاتا ہے اس کا آپ نے جو ہے وہ نام نہیں سنا. شینن وہ پہلا بندہ تھا جس نے میتھمیٹیکلی بینڈوڈ کو پروف کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ بینڈوڈ کیا ہے. جو میرے بھائی نے پیچھے جواب دیا اٹس اے کیپیسٹی آف اے چینل. کیا ہے میں بتاتا ہوں. یہ پہلے میں نے بینڈوڈ کی تو ڈیفینیشن بتائی، کیپیسٹی آف اے چینل. ابھی ایکسپلین کرتا ہوں یار، مزہ آ جائے گا. تو اٹ از اے کیپیسٹی آف اے چینل. کسی چینل کی کیپیسٹی ہے. سر میں نے کوئی لفظ نہیں بولا. میرا یہ دیکھو اسے کیا بولتے ہیں، کیپیسٹی آف اے چینل. کسی چینل کی کیپیسٹی یعنی کسی میڈیم کی کیپیسٹی. چینل بولے تو میڈیم بھی سمجھ نہیں آیا. دروازے کی کیپیسٹی، اس دروازے کی کیپیسٹی میں کہتا ہوں جو کمرے کا ہے اس میں سے کتنے بچے نکل سکتے ہیں؟ 3. تو دروازے کی کیپیسٹی کیا؟ 3 بچے. تو شینن نے کہا بینڈوڈ کیا ہے؟ اٹ از اے کیپیسٹی آف اے چینل، کیپیسٹی آف اے میڈیم. اور اس نے باقاعدہ فارمولے سے پروف کیا. اس نے کہا سی از اکول ٹو بی log with the base 2 1 plus SNR. معافی چاہتا ہوں ساری پشتوں کے لیے جی. شانن تھیورم ہی ہے جی. اس نے بینڈوڈ کے لیے میتھمیٹیکلی ایک تھیورم پیش کیا اور اس نے کہا C is equal to B log with the base 2 not with the base 10. log with the base 2 1 plus SNR where SNR جو ہوتا ہے signal to noise ratio. اور چھوڑ دو، پھر اس نے ثابت کیا کہ C جو ہے وہ کس کے برابر ہے؟ B کے. یہ دیکھو فارمولا where B is the bandwidth and C is the capacity of a channel. تو شینن نے پہلی دفعہ یہ چیز پروف کی تھی. بینڈوڈ کو میتھمیٹیکلی ثابت کیا تھا B کیا ہے is equal to C where C is the capacity of a channel. کسی چینل کی کیپیسٹی ہے. اور ابھی میں نے دروازے کی کیپیسٹی کیا بتائی؟ 3 بندے. میری جان میں نے اپنی ڈیفینیشن میں نے اپنی ایگزامپل میں کہیں یہ نہیں کہا 3 بندے پر سیکنڈ. یہاں مارکیٹ میں آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس پی ڈی سیل سے جو بینڈوڈ لی ہے کتنی ہے؟ کہتے ہیں 10 Mbps 1 Mbps 100 Mbps. کسی سمجھدار سے سوال پوچھنے کا لنک ہے، وہ کہیں پر سیکنڈ نہیں بتاتا. اگر تمہیں 9ویں کی فزکس بھول نہ گئی ہو تو 9ویں کی فزکس ریٹ کیلکولیٹ کرنا ہو تو یونٹ پر سیکنڈ ہوتا ہے. یہ 9ویں کی فزکس میں سکھایا گیا تھا. مثلا ٹرانسمیشن ریٹ اس کا یونٹ پر سیکنڈ، ڈیٹا ریٹ اس کا یونٹ پر سیکنڈ ہوگا. فلانا ریٹ، ریسیونگ ریٹ، ایکس ریٹ اس کا یونٹ پر سیکنڈ ہوتا ہے. ہماری ڈیفینیشن کیا ہے؟ اٹ از اے کیپیسٹی آف اے چینل. کسی چینل کی کیپیسٹی اس میں پر سیکنڈ کا یونٹ نہیں ہے. میں نے کہا دروازے سے 3 بندے نکل سکتے ہیں، وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی نکل سکتے ہیں اور وہ سیکنڈ میں بھی نکل سکتے ہیں. لیکن اگر میں کہوں 3 بندے پر سیکنڈ تو پھر یہ ریٹ ہے. اسے بولتے ہیں ڈیٹا ریٹ.
इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन रेट या इसे बोलते हैं रिसीविंग रेट। हम रेट की बात नहीं कर रहे, हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। और तमाम उलमा के लिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं गोरमे की बड़ी बोतल की कैपेसिटी कितनी है बताएं। आवाज नहीं आई। गोरमे के पानी की बड़ी बोतल की कैपेसिटी 19 लीटर। कितनी? कभी किसी ने कहा 19 लीटर पर सेकंड। तो जो कैपेसिटी है वो पर सेकंड में कहां से आ गई जी? सोचें, कैपेसिटी पर सेकंड में कहां से होती है? तो बैंडविड्थ की डेफिनेशन क्या है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ चैनल। 3 बंदे, लेकिन अगर तुम उसके साथ यूनिट लगा देते हो पर सेकंड तो फिर ये रेट है। सो याद रखो, डेटा रेट, ट्रांसमिशन रेट, रिसीविंग रेट, हर तरह का रेट एक अलग चीज है, बैंडविड्थ एक अलग चीज है। मैं आपको एक चले मजे की चीज दिखाता हूं, और ये आपके किसी यूनिवर्सिटी के उस्तादों को नहीं पता। सर की करें एंटर, लिखें यहां पे सीधो 0। अभी आपको दिखाता हूं, एंटर। अरे नीचे लाया बैंडविड्थ को जरा हाईलाइट करें, बीडब्ल्यू को। कुछ नजर आ रहा है? आगे यूनिट देखें क्या लिखा है। आवाज नहीं आई। किलो बिट, किलो बिट है या किलो बाइट है? मुझे बिट और बाइट में ना लेके जाए। सर बिट छोटा बी, बाइट बड़ा बी, हम उसी से ही निकले। ये बिट है या बाइट है? ये किलो बिट है या किलो बाइट है? ये गीगा बिट है या गीगा बाइट है? ये मेगा बिट है या मेगा बाइट है? मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं है। इसके आगे पर सेकंड नहीं है। ये क्या वर्ड होता है? एमबी, केबी, जीबी, पर सेकंड नहीं है। मैं और खतरनाक चीज दिखाता हूं। कॉन्फ्लिक्ट मोड में जाएं, लिखें इंटरफेस सीरियल 0, वर्ड लिखें बैंडविड्थ, और आगे क्वेश्चन मार्क दें। सर यूनिट पढ़े, समझ नहीं आया। किलो बिट या किलो बाइट, मेगा बिट या मेगा बाइट, गीगा बिट या गीगा बाइट, टेरा बिट या टेरा बाइट। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पर सेकंड नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज अ कैपेसिटी। और अब आपको उससे ज्यादा खतरनाक चीज दिखाने लगा हूं। देखिए सर, क्लॉक, 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 रेट, और रेट में यूनिट क्या होता है? पर सेकंड। लेकिन सर क्वेश्चन मार्क, अभी रूह कांपेगी आपकी। चेक करें बिट, ये 9वीं की फिजिक्स, ये भले बिट पर सेकंड हो या किलो बिट पर सेकंड हो या गीगा बिट पर सेकंड हो, पर सेकंड का वर्ड है इसके साथ। तो जहां रेट होता है वहां पर सेकंड होता है। और देखिएगा इसके साथ क्या स्पीड का वर्ड नहीं है? तो वो कैपेसिटी है। बैंडविड्थ अलग चीज है, स्पीड यानी कि रेट अलग चीज है। और अलमिया मार्केट का इतने इतने बड़े इस क्लास के टेक्नोलॉजी के गुरु 175, और उन्हें रेट, स्पीड और बैंडविड्थ सब घोट के पी गए हैं, सब एक कर दिया उन्होंने, क्योंकि उस्तादों के हालात बहुत खराब है। हमारी ना बर्बादी के जिम्मेदार हमारे स्टूडेंट नहीं है, हमारे उस्ताद हैं, जिन्होंने तहकीक करना, पढ़ना, ईमानदारी, चैप्टर 19 है, पढ़ाने 4 हैं या 1 है, और अपने लिए जिंदगी आसान रखनी है, और फिर मानना नहीं है। वो कहते हैं आंखों देखी मक्खी हजम नहीं हुई, ये सामने है रेट। ये उन्हीं को पता है जिन्होंने काम किया, उनको पता है कि यार फिर ये क्या चीज है। और मैंने यूनिट अब आपको सामने दिखा दी, देख लें उसके साथ रेट के साथ क्या वर्ड है? स्पीड का। यानी अगर मैं यहां पे कहूं ना 3 बच्चे पर सेकंड, तो ये रेट है। और कहूं दरवाजे की कैपेसिटी 3 बच्चे है, ये कैपेसिटी है। और मैंने क्या कहा था चंद लम्हे पहले? 3 बच्चे सेकंड के किसी भी हिस्से में गुजर सकते हैं, मतलब वो सेकंड में गुजर जाए, सेकंड के 1000वें हिस्से में गुजर जाए। हाँ, बस जब भी गुजरेंगे मैक्सिमम उसकी 3 बच्चे हैं। यहां तक साथ है? अब एक स्टेप और आ गया। ये था जी कमरा हमारा, राउटर जिसको, ये था जी दरवाजा, जिसकी कैपेसिटी हमने क्या कहा कितने हैं? 3 बच्चे। बस ऐसे रखेंगे, 3 बच्चे, ऐसे ही हो गया। इस कमरे का स्क्रीन नजर नहीं आ रही, ना करो यार मोहम्मद भाई, ऑनलाइन वालों को स्क्रीन नजर आ रही है भाई? टिक आ रही है मोहम्मद भाई, अपना आप ठीक करो भाई।
चलो जी, थैंक यू। वापस आते हैं। ये कमरा मैंने कहा जी राउटर है, ये जो जमीन है इसे मदरबोर्ड या डॉटर बोर्ड कह लो, और जिस पे आप बैठे, और आप लोग कौन है भला? ना ना, आप लोग हैं रजिस्टर, कैपेसिटर। अब मैंने कहा मैं थोड़ा वो भी पढ़ा दूं, फिजिक्स बहुत बुरी लगती थी, पढ़ाने का अंदाज है ना। रजिस्टर होता है जैसे तुम मुझसे सवाल पूछ पूछ के तंग करते हो, तो मेरे लेक्चर को क्या कर रहे हो, रजिस्ट कर रहे हो, ये है रजिस्टर। कैपेसिटर कौन है? जो मेरा लेक्चर सुनते हैं, दिमाग में स्टोर करते हैं, और फिर जाके अपने हमसाए के ऊपर अपना नॉलेज निकालते हैं। इसे कहते हैं चार्ज को स्टोर करना और फिर बाहर निकाल देना। ये कैपेसिटर का काम होता है। कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग कंपोनेंट होता है। तो मेरा लेक्चर सुनना, रेजिस्ट नहीं करना, बल्कि उसको सुनना, अपने पास रखना, और फिर अपने हमसाए को जाके निकाल देना, इसे कहते हैं ये कैपेसिटर की भेद है। अब यार ये कमरा, इसका मदरबोर्ड भी है, डॉटर बोर्ड भी है, रजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, तो प्रोसेसर भी होगा कि नहीं होगा? ये यहां पे प्रोसेसर हो गया जो डेटा को प्रोसेस करता है। यही पढ़ा ना। प्रोसेसर पे आने से पहले जरा थोड़ा सा क्लॉक रेट को एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, मैं अगर बैंडविड्थ की डेफिनेशन क्लियर ना करता, इसके यूनिट्स चेक ना कराता, कभी कॉन्सेप्ट ना बनता, स्पीड और उसमें कैपेसिटी में फर्क पता ना लगता। तो बड़ा जरूरी है कि स्पीड और कैपेसिटी का फर्क आपको बता दिया जाता। क्लॉक रेट की डेफिनेशन है, अभी आ रहा हूं, देखो अभी आ रहा हूं, मजा आ जाएगा। तो 5-7 मिनट और ऐसे तुमने डूब ही जाना है। बेगम का ख्याल दिन से निकाल दो, उसका ख्याल दिन में आते ही आधा इल्म तो वैसे ही निकल जाना था। चलें वापस ये जो जितने हंस रहे हैं ना, घर घर की कहानी है। आएंगे वापस। अच्छा, बात हो रही है जी क्लॉक रेट की। क्लॉक रेट की डेफिनेशन है, इट्स अ डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द डिवाइस। डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द डिवाइस। डेटा को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी। मेरी तो तस्वीर नहीं आ रही ना? आई तो रोजे क़यामत ऐसे हाथ करके मेरे गिरबान पकड़ ले। डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द, डेटा को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मोहसिन रजा ने हमारा काम आसान कर दिया। अब मैं इसकी टेक्निकल गुफ्तगू बाद में करूंगा, क्लॉक रेट की और डेटा प्रोसेसिंग की। आपकी किताब में लिखता है, आपकी किताब लिखते, मैं नहीं अब कह रहा, कि समझो कि यार ये कमरा है एक छोटा जहां बच्चे पैदा होते हैं। ये आपकी किताब की एग्जांपल है। वो कहता है ये कमरा है, प्रोसेसर है, जहां बच्चे पैदा होते हैं। वो कहते हैं यहां पर अगर एक बच्चा पर सेकंड पैदा हो रहा है, इसको जरा समझें। दिस इज नॉट अ बैंडविड्थ, व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेट, बच्चे पैदा होने की स्पीड। ये स्पीड है। क्या कहा? एक बच्चा, ये क्या हुआ? क्लॉक रेट यानी के स्पीड, डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द डिवाइस। तो यहां से बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा यहां पे प्रोसेसर ने रख नहीं देना, इसको प्रोसेसर ने फेंकना है। फेंकने को बोलते हैं थ्रोपुट, थ्रो करना। अब आप में से अगर किसी ने कोई माइक्रो प्रोसेसर पढ़े हो कभी जिंदगी में, थ्रोपुट का नाम जरूर सुनते हैं, पता कोई नहीं होता। तो अब आपके पास क्या हुआ, यहां से ना, वो आपने देखा होगा वो जाती हैं, बसेस होती हैं उसके ऊपर। अच्छा, कई जिन्हें पता ही कोई नहीं है, मदरबोर्ड डॉटर बोर्ड नहीं देगा, वो समझ रहे हैं वो जो ड्राइवर वाली बस है नहीं, वो ना उसके ऊपर मदरबोर्ड पे गोल्डन कलर की लाइनें सी होती है ना, बस बोलते हैं टेक्निकल। तो क्या होता है, ये प्रोसेसर उसके ऊपर थ्रो कर देता है, फेंकता है। फेंकने को बोलते हैं, लेट्स से मैं कह रहा हूं एक बच्चा फेंका, तो थ्रोपुट क्या हो गया? एक बच्चा पर सेकंड। अब वो एक बच्चा कहां पे पहुंचा? दरवाजे पर। एक बच्चा कहां पर पहुंचा?
भाईजान ऑनलाइन वालों को ये टिक नजर आ रहे हैं मेरे? जबरदस्त। मोहम्मद भाई हुण ना लिखना कुछ स्टॉप हो गया, ठीक है, अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बच्चे रोक रहे हैं, मतलब ज्यादती है सर, ठीक है, मतलब हमें बच्चे पैदा कर रहे हैं सर। चलो जी वापस आ गए, आगे 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 यहां से इसने इधर फेंक दिया और ये किधर पहुंच गए, इस इंटरफेस मतलब दरवाजे, और दरवाजे की कैपेसिटी क्या है, 3 बच्चे, बस आगे नहीं बोलना, 3 बच्चे। तो बताओ जो एक बच्चा आया था, क्या वो बच्चा आगे चला जाएगा? बिल्कुल जाएगा यार, क्योंकि दरवाजा खुला डुला, कैपेसिटी 3 की थी, एक भेज रहे हैं, कोई मसला नहीं। कहानी समझ आती है, कहां पर स्पीड, कहां थ्रूपुट और कहां पर बैंडविड्थ। अब जरा आगे चलते हैं। वो कहता है कि इस प्रोसेसर ने क्या किया, 3 बच्चे पर सेकंड शुरू कर दी पैदा। स्पीड क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई, 3 बच्चे और तीनों पकड़ के थ्रो कर दिए, थ्रोपुट हो गया। क्या ये तीनों निकल जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 3 की। कहानी समझ आ रही है? लेकिन अब अलमिया शुरू होगा, 6 बच्चे पर सेकंड ना, फेंकेगा तो सही, लेकिन दरवाजे की कैपेसिटी अब 3 की थी। हियर कम्स द रोल ऑफ ए बफर। आपको शायद पता हो, ये माइक्रो प्रोसेसर, प्योर माइक्रो प्रोसेसर बता रहा हूं, ये सारे के सारे 6 के 6 बच्चे पता पहले किस में लगते हैं बफर में, 1 2 3 4 5 6, इसे कहते हैं क्यू में लगते हैं। और अब इस क्यू में से रूल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये बाय डिफॉल्ट है, और अगर आप बदलना चाहें तो दैट कैन बी डन, जो कि आगे बड़े होके इंशाल्लाह हम सीखेंगे, प्रोफेशनल लेवल में जाके देखेंगे किस बच्चे को पहले निकालना। सो लिहाजा यहां पर क्या हुआ, क्योंकि दरवाजे की कैपेसिटी 3 है, तो कितने बच्चे इसमें से क्यू में से उठाए जाएंगे, 3, 6 नहीं 3, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 3 की है, तो वो 3 उठा के आगे भेज देगा, और फिर इनको भेजने के बाद अगले 3 उठाएगा और फिर उनको। प्रोसेस की समझ आ रही क्या, क्योंकि दरवाजे की कैपेसिटी 3 की थी। हाँ, अगर तुम चाहते हो इकट्ठे ही निकल जाए और जल्दी अमल हो जाए, कैपेसिटी बढ़ा के 6 कर लो, 6 के 6 इकट्ठे निकल जाएंगे। बात समझ आ रही? और जितनी देर ये इंतजार कर रहा है, इसे टेक्निकल नाम दिया जाता है क्यूइंग डिले, क्यू में लगने की ताखीर। और नान लगवाने जाते हैं तंदूर पे, एक बंदे के 3 नान लगे हुए हैं, उसके बाद ही तुम्हारे 3 लगेंगे ना, तो वो जो इंतजार कर रहे हो, व्हाट इज दैट, दैट्स अ क्यूइंग डिले, कतार में लगने का डिले है। तो ये यहां पर ऐसे काम हो रहा है। तो ये था जो ये प्रोसेसर कर रहा है हरकत, वो क्या, दैट्स अ स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, और प्रोसेसिंग स्पीड जिसे कहते हैं। अब यहां पर उसका टर्म क्या रख दी गई, क्लॉक रेट। कैपेसिटी यार जाके वैसे तो आपकी यहाँ पे जो कैपेसिटियां हैं, अगर 10 Mbps का लिंक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ ईथरनेट का, तुम लाकर बैंडविड्थ टर्मिनेट करते हो 1 MB, तो खुली डुली कैपेसिटी है तुम्हारे पास, तुम जाके बीडीसीएल वालों को पे करो और एक्स्ट्रा कैपेसिटी ले लो। याद रखो, whenever you have got 2 things, one is a 1 MB and the other one is a 10 MB, जो लोअर होता है that's the answer always। तो अगर 10 MB की पोर्ट और लिंक 1 MB का है, तो 1 MB is the answer। बदकिस्मती से 10 MB का लिंक लिया हुआ और पोर्ट 1 MB की है, तो तब भी जवाब 1 MB है। तो यू हैव टू बेसिकली मैच विद द स्टैंडर्ड्स कि तुम क्या कर रहे हो। चलो मसला ही कोई नहीं, वापस आ जाए द क्लॉक रेट पे। अच्छा, मैं अब ये क्लॉक रेट पढ़ाता हूँ तो लोग हैरान होकर मेरा मुंह देखते हैं, पता नहीं कितनी मुश्किल बातें कर दी, हालांकि ये काम 9वीं जमात में तुमने पढ़ा था, क्लॉक रेट 9वीं में पढ़ा। कहीं कह रहे नहीं सर हमें, मुझे सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम्हें ये 9वीं में पढ़ाया था कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी? पढ़ाया था ना? बात सिर्फ ये तुमने पढ़ा, पढ़ने के बाद बाहर निकले और ये जुमला बोला, आज के बाद से दोबारा ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, शुक्र है फारग हो गया। यही अप्रोच गलत है। सोचो कि आज के बाद से जो पढ़ा था उसकी इंप्लीमेंटेशन का टाइम है, और यही वो वजह है, ये सोच है जिसकी वजह से हम लोग ना कभी रिसर्च, कभी अच्छी चीजों की तरफ नहीं जाते। हमारे बच्चों में और बाहर के बच्चों में जमीन आसमान का फर्क।
सोच बदलनी है भाई अपने बच्चों की। मत ये कहना बाहर निकल के किताबें आज के बाद से खत्म, शुक्र है जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। तुम्हें पढ़ाया किस लिए? इसीलिए कि कल को कोई और चीज दो तो कोरिलेट करो ताकि तुम बेहतर किसी के साथ बात कर सको। सो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब मैं आगे आता हूँ, मैं आता हूँ आप पे। नहीं, वो ये इसकी एग्जांपल है कि अभी रिसेंटली इस वीक में एफआईए के असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर हुए, उसमें उसने सारी एवरीडे साइंस केमिस्ट्री जो पार्ट 1 की वो सारी दी थी, सारी पूछे सारी को, मतलब जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह ये तो अंदाजा करो यार, ਹੁਣ ना बॉन्ड ਦਾ पता है ਤੇ ਨਾ ਐਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਐਟਮ नहीं, एटम बम ਡਿੱਗਿਆ इम्तिहान ਦੇ अंदर सर। तो वापस आ जाए सर इधर। अच्छा, बात हो रही है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और आपको शायद आइडिया हो, जब तुम आजकल मशीन खरीदते हो तो तुम एक टर्म यूज करते हो, यार मेरी मशीन का जो प्रोसेसर है ना वो 19.2 गीगाहर्ट्ज का है, 40 गीगाहर्ट्ज का है, फलाना गीगाहर्ट्ज की टर्म की बात करते हैं। मुझे याद है मैंने पहली को मशीन खरीदी 33 मेगाहर्ट्ज की, 66, 133 मेगाहर्ट्ज, 266 मेगाहर्ट्ज। फिर वक्त गुजरता गया और ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट बढ़ता गया। यानी मुझे याद है मैंने किसी दोस्त को कहा मैंने ना 2.4 गीगाहर्ट्ज की मशीन ले ली है। कहा तूने अभी ली है? मैं तो 9.6 गीगाहर्ट्ज पे पहुंच गया हूं। यानी इसका मतलब है बड़े होने का पैमाना क्या था? फ्रीक्वेंसी ज्यादा। क्योंकि ये ह्यूमन साइकी है, इंसान वो ना बड़ी चीज से इंप्रेस होता है। तुम छोटी किसी को कहोगे इंप्रेस नहीं होगा। मसलन तुम कहते हो यार मेरे पास ना एक गाड़ी थी, मैंने और छोटी सी कर ली। कहते यार मैंने क्यों दस रहे, लेकिन तुम कहते यार मेरे पास गाड़ी थी मैं बहुत बड़ी कर दी, तो लगता हाँ यार कोई अचीवमेंट है। तो इसलिए ह्यूमन साइकी है, आप चीज का बड़ा होने का बताते हैं। यानी अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज है तो मैं अगले को 9.6 गीगाहर्ट्ज बताऊंगा, तो इसका मतलब है ये प्रोसेसर ज्यादा बेहतर है। असल में जब तुम फ्रीक्वेंसी कह रहे होते हो ज्यादा, तो तुम्हें पता है तुम इनडायरेक्टली क्या कह रहे होते हो? टाइम कम। क्या टाइम कम? एप्लीकेशन डेटा कम टाइम में प्रोसेस हो जाएगा। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उतना टाइम कम रिक्वायर्ड होता है किसी एप्लीकेशन या डेटा को प्रोसेस करने का। बात समझ आ रही है? यानी जब किसी को तुम आज फ्रीक्वेंसी ज्यादा बताते हो, प्रोसेसर के तगड़ा होने का बताते हो, तो इनडायरेक्टली कहते हो कम टाइम वाला प्रोसेसर। तो सवाल सर फिर ये यूनिटी टाइम वाला रख लेते हैं, ये फ्रीक्वेंसी वाला यूनिट क्यों रखा? मैंने वही बताया, इंसान की नफ्सियात। पर हम अपने बड़ों से पैसे लेने जाते हैं, अब्बा जी मैंने नई मशीन लेनी है, वो पुरानी ना 2.4 मतलब गीगाहर्ट्ज की 9.6 गीगाहर्ट्ज वाली लेनी। तुमको समझ आता है पुत्र सारा तो बड़ी चीज करने लगा। लेकिन अगर तुम कहते मैं टाइम कम वाले पे जा रहा हूं, कहते पुत्र ज्यादा टाइम वाले का कर, तो एक मजाक बन जाता ना बड़ों का कि उनको पता ही नहीं है क्या बात कर रहे हैं। तो वो एक इंसान की नफ्सियात से निपटने के लिए फ्रीक्वेंसी का यूनिट रखा गया प्रोसेसर के हवाले से। अदरवाइज ये टर्म सर आखिरी 5 मिनट में कंक्लूड कर दे। सर मैं तो इतनी जोशे खिताबत में था आज, और मैंने इतने मोहब्बत से बांट दी इसके अंदर के मतलब अब इतनी तो जीले ने नहीं बांटी होगी। हद हो गए सर, कमाल कर दी यार आपने। अच्छा जी, चलो सर ठीक है सर, कुछ नहीं पढ़ाया भाई। किस्सा मुख्तसर ये है, एक बैंडविड्थ होती है, उसका क्या मतलब है? कैपेसिटी ऑफ ए, और दूसरा रेट होता है, बस खाली लिखते हैं रेट होता है, और उसका यूनिट क्या होता है? पर सेकंड। इतना पढ़ाया आज, मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया। यहां से सिलसिला आगे लेके चलेंगे, मजा आ जाएगा। ये जो आपकी बुनियादें हैं ना, हिली हुई बुनियादें, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट की बुनियादें हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।